خبروں کے ساتھ میں ہوں صبا شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس۔ لاہور بار نے بھی انٹرا کورٹ اپیلوں میں فریق بننے کے لیے آپ کو بتائیں کہ درخواست دائر کر دی ہے۔ خبر یہ ہے سپریم کورٹ میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس، لاہور بار نے بھی انٹرا کورٹ اپیلوں میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، قمر میکن نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قمر بتائے گا اس خبر سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا یہ معاملہ ہے۔ اس میں جو لاہور بار ہے اس نے انٹرا کورٹ اپیلوں میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کی ہے کہ اب کے بعد فوجی عدالتوں کے کیس میں جو انٹرا کورٹ اپیلیں سپریم کورٹ میں ہیں یا آئیں گی ان میں ہمیں فریق بنایا جائے۔ اور یہ وکیل حامد خان صاحب کی طرف سے لاہور بار کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیلوں میں عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو معاملات زیر سماعت ہے اس میں ہمیں جو نمائندگی دی جائے، اور بنیادی حقوق اور عوامی مفادات کے مقدمات میں سپریم کورٹ پہلے بھی وکلاء تنظیموں کو نمائندگی کا حق دے چکی ہے۔ تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس پر سماعت جو ہے وہ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے میں ہو سکتی ہے۔ جی، لاہور بار کی بھی انٹرا کورٹ اپیلوں میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ قمر میکن ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا اہم اقدام، کراچی ڈویژن کے قیدیوں کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو بتائیں کہ ریکارڈ کرنے کے انتظامات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، اشرف سولنگی نے ہمیں جوائن کیا۔ اشرف بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اہم اقدام لیا ہے۔ کراچی ڈویژن کے قیدیوں کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرانے کے انتظامات کا حکم دے دیا ہے۔ ممبر انسپیکشن ٹیم کو سیشن ججز جنوبی، غربی، وسطی، ملیر، ٹھٹا اور سجاول کے ججز کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات کو بھی انڈر ٹرائل قیدیوں کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کے انتظامات کی ہدایت کی ہے۔ جیل حکام ویڈیو لنک کے ذریعے انڈر ٹرائل قیدیوں کے بیانات ریکارڈ کرانے کے انتظامات کریں۔ ممبر انسپیکشن ٹیم نے یہ حکم دے دیا۔ جی، کراچی ڈویژن کے تمام قیدیوں کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کے انتظامات کا حکم اشرف سولنگی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 107 اور PP 123 کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہری سیوریج، پینے کے صاف پانی اور صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ندیم عباس، قمر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں قومی اسمبلی کے حلقہ 107 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 123 میں، اور یہ حلقہ کن مسائل کا شکار ہے اور ان مسائل کو کون حل کرے گا، یہ پوچھیں گے حلقہ کی عوام سے۔ جی، شہر کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے۔ گلیوں میں جو ہے سیوریج کا گندا پانی ہر جگہ پہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ امیدوار جو ہے وہ نئی پارٹیوں کے سامنے آ رہے ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن جو شہر کے مسائل ہیں ان کی طرف نہ کوئی توجہ دی گئی ہے اور نہ ان کو حل کیا گیا ہے۔ پارٹی کوئی بھی برسر اقتدار آئے، عوام کا تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ محفوظ رہیں۔ یہاں پر جو ہے سیوریج کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس حلقے میں، جو انتہائی بوسیدہ سیوریج ہے، ہمارے جو لاکھوں کروڑوں کی لاگت سے بنائے گئے مکانات ہیں وہ مسمار ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہماری ہسپتالوں میں ادویات کا بہت فقدان ہے، زیادہ شہر میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور گٹر ہیں۔ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ ہم جو اچھا کام کریں گے اسی کو ووٹ دیں گے۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی منتخب ہو اور وہ ہمارے مسائل حل کرے تو ہر ساتھ دیں گے۔ جی، نوشیرہ سے آپ کو خبر دیں گے، نوشیرہ میں نون لیگی امیدوار اختیار ولی نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ GTV نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرا مقابلہ کسی سیاسی امیدوار سے نہیں، انتخاب جیت کر شہریوں کو درپیش مسائل حل کروں گا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے محمد اسد، بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے نوشیرہ میں گہما گہمی جو ہے وہ جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے مختلف مقامات پر جلسے جلوسے جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ کے آفس میں اختیار ولی خان کے ساتھ، اور اب اختیار ولی خان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک کے ساتھ۔ تو اختیار ولی خان سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا لاہ عمل بنایا ہے
नौशेरा के इन मसले मसाइल के हल के लिए। सबसे पहले हमारा जो टास्क है वो इस मुल्क की इकोनॉमिकल रिवाइवल है। मुल्क की मुआशी जो तरक्की है उसको हमने दोबारा बहाल करना है, मईशत को हमने तरक्की की तरफ गामजन करना है, महंगाई के पैर तोड़ने हैं। महंगाई की जब तक कमर नहीं तोड़ेंगे अवाम सर नहीं उठा सकेगी। तो परवेज़ खटक के साथ हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। उसकी मिसाल इस वक्त ऐसी है जैसे एक फटा हुआ गुब्बारा होता है, फटे हुए गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि उम्मीदवार NA 33 और PK 88 मुस्लिम लीग नून के इख्तियार अली खान का कहना था कि वो कामयाब होकर नौशेरा के अवाम के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और पीने के पानी का जो मसला है, जो सबसे बड़ा और संगीन मसला है, इसको हल करेंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमत बनेगी तो इस मुल्क के मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जी, और ख़बर यह है कि इलेक्शन करीब आते ही गम्बट के शहरी भी इंतखाबी उम्मीदवारों से होशियार हो गए हैं। कहते हैं गुज़िश्ता दौर हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ, सैलाब आया और चला गया, हमारा माल असबाब सब बह गया, घरों की तामीर बड़ी मुश्किल से की, अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। सिराज अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। गम्बट के शहरी कहते हैं गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है, आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इलेक्शन करीब आते ही सियासतदान हमारे घरों पर आना शुरू हो गए हैं। अस्पतालों और स्कूलों में कोई सहूलत मौजूद नहीं, गरीब शहरी मुफ्त इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो सिंध के अंदर सैलाब आया, इतना खतरनाक, इतनी क़यामत की घड़ी थी, लेकिन कोई भी सियासी नुमाइंदा जो है घर से निकल अवाम के पास नहीं आया। सबसे पहले तो मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ GTV वालों का, जिन्होंने जो दुख सुख में वही हाल पूछते हैं, लेकिन मिनिस्टरों की तरफ से कोई आता ही नहीं है, क्योंकि हम उनकी नज़रों में तो हम भेड़िए हैं और हम जानवर हैं। शहरी कहते हैं अब वोट उसी को देंगे जो कराएगा। कैमरा टीम के साथ सिराज अब्बासी, GTV न्यूज़, गम्बट। इलेक्शन करीब आते ही नौशेरा में सियासी उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पुरानी सियासी जमातों के वादों से तंग शहरियों ने नए उम्मीदवारों को आजमाने का फैसला कर लिया है। मोहम्मद असद की ये रिपोर्ट देखिए। जूझू इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, उम्मीदवारों की जानिब से जलसे और जुलूसों में भी तेजी आ गई है। नौशेरा में सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी किए जा रहे हैं आवाम से बड़े बड़े वादे। मैं सिर्फ आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 40 साल भी गुजरे और मुख्तलिफ पार्टी आकर मुख्तलिफ वक्तों में उन्होंने इलेक्शन लड़े, उसमें पहुँचे, मगर अवामी मसाइल हल करने में उन्होंने एक नुक्ता भी मतलब आगे नहीं बढ़ाए। दूसरी जानिब नौशेरा के अवाम ने सियासी जमातों के उम्मीदवारों के बजाय आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए कमर कस ली है। कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा, इसका फैसला 8 फरवरी को। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। डेरा इस्माइल खान में कौमी असम्बली के हल्का 44 में जोर का जोड़ पड़ेगा। हल्के से इंतखाब में कुल 32 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। बड़े नामों में मौलाना फजल रहमान जमियत उलमा इस्लाम के टिकट पर, जबकि दोनों बेटे असजद और असाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे। इस हवाले से देखते हैं तौक़ीर ज़ैदी की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान के इंतखाबी हल्के NA 44 में तहसील पहाड़पुर, शोरकोट, चहकान, कोटला सईदा पटवार और दीगर इलाके शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी 7,72,267 नफूस पर मुश्तमिल है। तहसील पहाड़पुर की आबादी 3,09,937 है। म्यूनिसिपल कमेटी तहसील डेरा की आबादी 2,13,756 है। कैंटोनमेंट तहसील की आबादी 6,819 अफराद पर मुश्तमिल है। शोरकोट की आबादी 92,221 है। चहकान की आबादी 69,335 है। कोटला सईदा पटवार की आबादी 80,674 नफूस पर मुश्तमिल है। डेरा इस्माइल खान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,91,882 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,08,481 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,83,401 है। इंतखाबात के दिन हल्के में कुल 358 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। बात की जाए सियासी उम्मीदवारों की तो JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार अली अमीन गंडापुर, आज़ाद उम्मीदवार वकार अहमद खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान के दो बेटे मौलाना असजद महमूद और मौलाना असद महमूद भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के वालिद, भाई और खुद अहलिया भी इंतखाबी मैदान। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी जलसे के लिए कोट अद्दू में मैदान सजा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर में खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं, न्याज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। न्याज, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं।
जी बिल्कुल, आज ज़िला कोटद्दू में पहली बार बिलावल भुट्टो जो है कोटद्दू में पहुंचकर जो है आज आवाम से जो है खिताब करेंगे और यहाँ पर स्टेडियम में कसी तादाद में मुख्तलिफ शहरों से जो है कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर इस टाइम मैं स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर कसी तादाद जो है यहाँ पर नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो बिलावल भुट्टो का जो है खिताब सुनने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम कहूँगी कि वो इस छोटे से इलाके में हमारे लिए आ रहे हैं, और दूसरा ये कि हमारे इस छोटे से इलाके को इंशाअल्लाह हमारी गरीब आवाम को बहुत ही इस चीज़ से फ़ायदा होगा। और इलेक्शन के लिए जो है ना इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन भी हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी ही इंशाअल्लाह हमारे कायद होंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हमारा जो है इलेक्शन में जो है हमारे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो भी होंगे। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात है। बिलावल भुट्टो ने जो है 12 बजे यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे और मुख्तलिफ़ शहरों से जो है काफ़िले आ रहे हैं बिलावल भुट्टो का जो है खिताब सुनने के लिए। कुछ देर बाद यहाँ पर बिलावल भुट्टो पहुँचेंगे और कोटद्दू के आवाम से जो है खिताब करेंगे। जी, और इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में कराची के हल्के NA 233 कोरंगी 2 से मुतालिक मजीद बताएंगे हिलाल नजबी। आइए देखते हैं। NA 233 कराची कोरंगी 2 आबादी के एतबार से सबसे बड़ा हल्का है। ये हल्का पहले NA 240 था। बात करें आबादी की तो यहाँ की आबादी 10,31,170 अफराद पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर बात करें तो 8,52,610 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,69,488 है, जबकि ख़वातीन की तादाद 3,83,122 है। हल्के में 288 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे, जहां आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौन किसके मुकाबिल है, अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की निदा आसिम, MKM के जावेद हनीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस म्यो आमने सामने होंगे। 2018 के आम इंतखाबात की अगर हम बात करें तो इस हल्के से MKM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली ने फ़तह हासिल की थी। इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उस वक्त भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ही कामयाबी हासिल की और उनके उम्मीदवार थे मोहम्मद अबू बकर। हल्के के मसाइल क्या हैं और लोगों का झुकाव किस जमात की जानिब है, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी ने ये जानने की कोशिश की है। वहाँ के आवाम से बात की है, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। आइए चलते हैं और यहाँ की आवाम से जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। वोट मांगने के लिए आएंगे नहीं, आ चुके, कितनी दफ़ा आ गए। दफ्तर खुले में 3 हमारी इस गली में डी एरिया में, समझे, मैं भी ताज वालों का, MKM वालों का और क्या नाम है उसका, जमात इस्लामी का, सबके दफ्तर खुले में। काम एक पैसे का कोई नहीं कर रहा, वोट मांगने आ रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का निज़ाम ख़राब है, गटर का निज़ाम ख़राब है और गैस जो है वो नहीं आ रही। वोट तो हमारा पतंग को ही होता है और पतंग को ही दिया जाएगा। मसले हमारे सिर्फ यही सही कर सकते हो, कोई नहीं सही कर सकता। सियासतदान है, बस असम्बलियों में बैठे हुए हैं, कुछ बस बयान पे बयान करे जा रहे हैं। हमारे यहाँ आवाम का मसाइल सुनने के लिए कोई है भी नहीं। जो भी शख्स वोट देता है ना, ज़हनी तौर पर तैयार होता है, वोट दे दिया काम नहीं होगा। इतना सा बच्चा ना कराची का रहने वाला, उससे ज़्यादा दिमाग चलता है बच्चे का, सियासत से ज़्यादा। उन्हें पता है ये वोट मांगने आ रहे हैं, 2 दिन बाद सिर्फ झाड़ू लगवा देंगे, तीसरे दिन वोट लेंगे और चले जाएंगे, फिर महीनों छुप। हल्का NA 233 की हालत भी कराची के उन्हीं हल्कों की तरह है जहां पे अरसे दराज से तरक्याती काम नहीं हुए। यहां की आवाम भी यही कहती है कि अरसे दराज से ना तो बिजली है, ना गैस है, ना पानी है और गली में कचरों का अंबार है जिसे उठाने वाला कोई नहीं। मैं जाफर खान के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। सौलत जाफरी की रिपोर्ट आपने देखी। इस हल्के में माजी में क्या सूरत हाल रही है और इस इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बता रही हैं सीनियर एंकर पर्सन सना हाशमी। आइए देखते हैं। NA 233 के जिस हल्के के बारे में आपने मुझसे पूछा है, ये हल्का रिवायती तौर पर माजी में हमने देखा है कि उर्दू स्पीकिंग्स का हल्का रहा है और यहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो माजी में थी उसका भी बड़ा मजबूत किला माना जाता था। लेकिन जब वो तितर बितर हुई तो फिर पतंग के निशान पर ही हमने देखा कि अबू बकर साहब ने लास्टली जो हम बाई इलेक्शन को अगर देखें तो वहाँ से अपना मार्का मारा था। लेकिन इस पूरी अगर टेरिटरी या पूरे हल्के की आप बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें महाजिर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब का भी एक बहुत बड़ा
चंक है जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनका निशान है मोमबत्ती। लेकिन इस सब सिनेरियो में जो सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी जमात बिलखुसूस TLP जो है, इस फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और पुरानी मुत्तहदा जो है उसका बाइकआउट फैक्टर भी यहाँ पे बड़ा काम करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस बार PTI के आज़ाद हैसियत में हिमायत याफ्ता लोग भी शायद कोई सरप्राइज देने में कामयाब हों। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन द 8th of Feb।